हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन के बारे में। इससे पहले क्लास आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस क्लास के अंदर हम लोग कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम 3 प्रकार का डिस्कस करेंगे। उसमें से सबसे पहला है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सबसे पहले तो आप सभी को इसका फुल फॉर्म ही याद रखना है, शॉर्ट में इसको कहा जाता है एडीएसडी। ADHD is a mental disorder of a neurodevelopment type. It is characterized by difficulty paying attention, excessive activity, and acting without regard to consequence, which are otherwise not appropriate for a person's age. The characteristics of ADHD can include क्या क्या करेक्टर है, inattention है, impulsivity है और ओवर एक्टिविटी है। A person with ADHD has difficulty in brain development and brain activity that affect attention, the ability to sit still and self-control. ADHD can affect a child's of school, at home and friendship. क्या क्या कारण से हो सकता है? Despite of how ADHD is, doctor and researchers still are not sure what are the causes of condition. इसका एक्चुअल कॉज तो अभी तक रिसर्च हो ही रहा है, लेकिन एक्चुअल कॉज नहीं मालूम है। It is believed to have neurological origin. Genetics may be also play a role. Research trusted source suggested that reduction of dopamine is a factor in SDSD. डोपामिन का रिलीज होना, एक्सेस होना, रिडक्शन होना उसका मेन कारण हो सकता है। डोपामिन क्या है? केमिकल है इन द ब्रेन दैट हेल्प मूव सिग्नल फ्रॉम वन नर्व्स टू अनदर। इट प्ले रोल इन ट्रिगरिंग इमोशनल रिस्पॉन्स एंड मूवमेंट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एडीएचडी का रेमेडीज डिस्कस करेंगे। इसका दो रेमेडीज है, बिहेवियरल थेरेपी और मेडिटेशन। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बिहेवियरल डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। इसका नाम है ODD। इसका फुल फॉर्म है ऑपरेशनल डिफेंस डिसऑर्डर। इट इज ए बिहेवियरल और डिफेंस डिसऑर्डर डिफाइंड बाय क्रोनिक एग्रेशन, frequent outbursts, and a tendency to ignore requests and purposely irritate others. An oppositional defense child will often lose his temper, argue with adult, actively defy a request or rules set by adult, deliberately annoy people and blame others for misbehavior. He will engage in angry, violent, and disruptive conduct direct at adult in his life, parents, teacher, physician, and other authority figures. He may seem to feel most comfortable in the midst of a conflict, which is upsetting and exhausting for everyone involved, even the child himself. The symptoms of ODD may look different for girls and boys. In whom the condition is more common, boys with ODD tend to move physically aggressive and explosive of anger, while girls often lie, refuse to cooperate, and otherwise express symptoms in the indirect way. ODD is usually diagnosed in early childhood. The most common symptoms of ODD include क्या क्या symptoms ODD का हो सकता है? Physical aggression, verbal abuse, explosions of angers, deliberately annoying others. इसके बाद नेक्स्ट हम लोग ODD का कॉजेज डिस्कस करेंगे। इसके एक्चुअल और एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक नहीं मालूम है, लेकिन दो प्रकार का कॉजेज हो सकता है, डेवलपमेंट फैक्टर और लर्न फैक्टर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसका रेमेडी डिस्कस करेंगे। पेरेंटिंग मॉडिफिकेशन, सोशल इमोशनल स्किल ट्रेनिंग, साइकेट्रिक मेडिटेशन, ये तीन तरीका से हम लोग इसको रेमेडीज कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉन्डक्ट डिसऑर्डर। कॉन्डक्ट डिसऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ बिहेवियरल एंड इमोशनल प्रॉब्लम that usually began during childhood or adolescence. Children and adolescents with disorder have a difficult time following rules, behaving in a socially acceptable way. They may display aggressive, destructive, and deceitful behavior that can violate the right of others. Adult and other children may perceive them as a bad, diligent, rather than having a mental illness. इसका दो कॉजेज जनरली है, जेनेटिक कॉज से हो सकता है और इन्वायरमेंटल कारण से भी हो सकता है, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज, डिसफंक्शनल फैमिली, पेरेंट हु अब्यूज ड्रग्स और एल्कोहल, पॉवर्टी, ये सब इन्वायरमेंटल कॉजेज से हो सकता है। इसका रेमेडीज क्या क्या हो सकता है? चिल्ड्रन एंड रिलेशन विद कॉन्डक्ट डिसऑर्डर टेंड टू हैव अनदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज एंजाइटी डिसऑर्डर और मूड डिसऑर्डर सच एज डिप्रेशन. In these cases, it is essential that both condition can be treated as at a time. यानी एज अब डिसऑर्डर होता है, इसके साथ एक और डिसऑर्डर हो जाता है जिसको कहा जाता है एंजाइटी डिसऑर्डर। तो दोनों को साथ में रेमेडीज देना बहुत जरूरी होता है। कॉन्डक्ट डिसऑर्डर itself रिक्वायर कॉम्प्लेक्स, केयरफुल एंड लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट। इसके लिए बहुत लंबा और केयरफुल ट्रीटमेंट चाहिए। एंड मेथड यूजली इन्वॉल्व ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेंसिव साइकोथेरेपी एंड साइकेट्रिक मेडिटेशन। ये जो है इस तरीके से हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। साइकोथेरेपी पे एक क्वेश्चन भी आया था, आप सभी को याद रखना है साइकोडर्मा क्या है। एक साइकोथेरेपी है, ये असम डेट में क्वेश्चन भी आ चुका था 2021 में। सम चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर conduct disorder need to stay in a residential treatment center where they can be removed from the usual environment, managed appropriately and separate from others until दे बिहेव इन स्टेबलाइज एंड सेफ। तो ये सब जो है इसका रेमेडीज हो सकता है।
कॉन्डक्ट डिसऑर्डर का। इसके बाद कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओडबल डी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑपरेशनल डिफेंस डिसऑर्डर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कॉज ऑफ कॉन्डक्ट डिसऑर्डर। कॉन्डक्ट डिसऑर्डर का मेन कारण क्या है? जेनेटिक और इन्वायरमेंटल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी एडीएचडी इज ए चाइल्डहुड डिसऑर्डर नोन एज। तो चाइल्डहुड में इसको क्या कहा जाता है? हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक और क्वेश्चन 2021 में आया था, उसको मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, वो था साइकोडर्मा क्या है? साइकोडर्मा एक साइकोथेरेपी है, तो इसको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।